am so excited, and I have to tell you that this is a teaching that I have props and I do a little act, but because it's Zoom, it has to be taught different. और खुदा की कालमा कहती है मेरी जो मैं खुदा के कलाम की खिदमत करती हूँ, इसलिए वन ऑफ माई फेवरेट है ये मेरे जो है मेरे दिल के करीब है बाइबल मुकद्दस का हिस्सा। और जब मैं कलाम के इस हिस्से को बयान करती हूँ तो कुछ ड्रामाई सूरत में होता है, और लेकिन क्योंकि ये जूम में है तो जूम मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में ही इसको मैं बयान करूँगी। So the title of my message is Who Touched Me? I want you to tell your neighbor, Who touched me? और आज खुदा की खात्मा का जो मज़मून है वो है किसने मुझे छुआ। आप साथ वाले से कह सकते हैं कि किसने मुझे छुआ, कहें। आज इसके बारे में सीखेंगे, किसने मुझे छुआ। ये यीशु मसीह ने अल्फाज बोले हैं कि किसने मुझे छुआ। And we're going to be talking about the woman with the issue of blood. और एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। And we're going to go ahead and go straight to the word, and we're going to read in the book of Mark, chapter 5, 25 to 34. And you can also find this story in the book of Luke and Matthew. But we're going to go ahead and read it in Mark. And I'm going to read it first, and then you can read it, Pastor. Is that okay? Okay. You are going to read from the book of Mark? Yes, Mark chapter 5. Okay. 25 to 34. Okay, no problem. Go ahead. Okay. And there was a woman with a blood flow for 12 years who has suffered much under many doctors. She has spent all that she had without benefit. Instead, she grew worse. But when she heard about Yeshua, she came through the crowd from behind and touched his garment, where she kept saying, if I just touch even his clothes, I shall be healed. Right away the blood flow stopped, and she felt in her body that she was healed from this disease. At once, Yeshua, knowing in himself that power had gone out from him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" His disciples responded, "You see this whole crowd pressing upon you, and you say, 'Who touched me?'" But he kept looking around to see who had done this. But the woman, scared, shaking, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in shalom and be healed from your disease." Lucas 5 बाब उसकी 25 आयत से। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली है, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्द ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई
और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। Let's go ahead and invite the Holy Spirit to be with us. आए दोनों हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, ऐ पाक आ और तू आज मुझे सिखा। हालेलुया। Spirit of living God, fall fresh on us. और खुदावन खुदा, ऐ पाक रूह खुदा, तू आ और हमें सिखा इस कलाम के बारे में। We know that you have set the atmosphere up. We know that your presence is with us. और खुदावन हम इस बात के लिए पाक रूह खुदा हम जानते हैं तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। Because you say in your word in Matthew 18:20. और क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में मत्ती 8 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, When two or more are gathered, that you are in the midst. तेरे कलाम में मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में आ मौजूद हूँ। We invite you, Holy Spirit. ऐ पाक रूह खुदा, हम तुझे इस जगह पर वेलकम कर, दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को। Thank you Jesus. We welcome you. We welcome you. We आए कहे, ऐ पाक welcome you. रूह, मैं इस जगह पर तुझे वेलकम करती हूँ। आए बोलिए, कहे, ऐ पाक रूह खुदा, हम तुझे इस जगह पर वेलकम करते हैं। We ask that you would penetrate our hearts and renew our minds. और कहे कि खुदावंद तू मेरे दिल को तैयार कर और मेरे ज़हन को खोल कि मैं तेरे कलाम को सीख सकूं। We know that your word is alive and active and sharper than a two-edged sword. और कहे कि खुदा मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि तेरा कलाम हमेशा जो है वो कुदरत वाला कलाम है, जो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। We pray that even as the word has been delivered, that you will start to heal your daughters, heal their hearts, heal their emotions. और खुदा जैसे जैसे तेरा कलाम सुनाया जाता है, खुदावंद इसी कलाम के दौरान खुदावंद खुदा इनके इमोशंस को हील कर शिफा दे, इनको बदले शिफा दे। Deliver us from the hands of the enemy. और खुदावन खुदा हमें हमारे दुश्मन से रिहाई बख्श। Right now, Lord, Holy Spirit, you are healing someone that is battling anxiety and depression. We bind and rebuke you right now in the name of Jesus. खुदा की कालमा कहती है, यहाँ पर कोई एक औरत है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और वो ज़हनी दबाव का शिकार है। खुदा की कालमा कहती है, खुदा का पाक मुझे बता रहा है कि खुदा उसे जो है वो रिहाई बख्श रहा है, खुदा उसे बहाल कर रहा है। हालेलुया। Holy Spirit, we thank you so much. ऐ पाक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। We thank you for your word. खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। And I just pray for myself and I pray for Pastor Samuel, and we also pray for the Wi-Fi, the internet connection. और खुदा मैं अपने लिए भी, खुदा के खादम पास्टर उदनान के लिए भी और इसी तरह से इंटरनेट की तमाम खुदा इन कनेक्शंस के लिए भी दुआ करती हूँ कि सही काम करें। We ask that you anoint us, Father from heaven, anoint us to do what you have called us to do. Use us as vessels and instruments for your glory. और खुदा हमें अपने खुदा वैसल के तौर पर, अपने खुदा इस बर्तन के तौर पर हमें खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। Let it be your utterance that speaks through us, not our words, but your words, Father, that will heal and deliver today. और खुदा आज जब तेरा कलाम सुनाया जाता है तो खुदा हम अपने अल्फाज नहीं बल्कि तेरे कलाम को बोले। And we pray this in your mighty, mighty name of Yeshua, our Lord and Savior. Amen and amen. यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे कहें आमीन। Amen. Ladies, are you now ready? आइए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। प्रेज़ हालेलुया। Praise God. So let me give you a backstory about Jewish
community. इससे पहले कि खुदा की खात्मा कहती है कि हम इस हवाले की तरफ आए, खुदा की खात्मा कहती है मैं जानती हूँ कि हम जाने कि यहूदी उस दस्तूर के मुताबिक इस बीमारी के बारे में क्या है। So in Jewish law, women were declared to be ceremonially unclean due to her bleeding issues. यहूदी कानून खवातीन को इस बीमारी के वसाइल की वजह से जिनको ये बीमारी होती थी, इस वजह से वो किसी भी तकरीब में जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको नापाक ठहराया जाता था। And ladies, I want to just tell you something real quick. If it wasn't an issue, and if God didn't give the man the authority to speak about this issue, it would not be in the Word of God. और हम देखते हैं कि ये खुदा के कलाम के हिस्सा में है कि अगर कोई ऐसी औरत जिसको ये बीमारी होती थी तो खुदा का कलाम उसके बारे में ये कहता है। So a lot of grace for Pastor Samuel. और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बात तो खवातीन की हो रही है, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा के कादर पादरी अदनान तर्जुमे में मेरी एक मर्द होते हुए मेरी मदद कर रहे हैं। So this ceremony unclean, we read that in the book of Leviticus chapter 15, 25 to 27, those of you that are writing notes. और अगर हम आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अहबार उसके 15वें बाब की 25वीं आयत से 27वीं आयत में ये इशू, ये अगर किसी को बीमारी होती थी तो इसके बारे में यहूदी जो शरीयत है उसमें ये लिखा हुआ है। So that meant that she wouldn't be able, she wasn't permitted to enter the temple for any Jewish ceremony religions. और इस बात को जान लीजिए, जब मेरी बहनें देखें कि अगर कोई ऐसी बहन बेटी अगर जिसको ये बीमारी होती थी तो उसको जो है सख्ती से मना था कि वो हैकल में दाखिल नहीं हो सकती थी। So according to the law, anyone she touched became unclean as well. कानून के मुताबिक इधर देखें, शरीयत के मुताबिक अगर वो औरत जो नापाक हालत में है, अगर वो किसी शख्स को छू लेती तो वो शख्स भी नापाक हो जाता। And Jewish people till this day they practice this same law. और ना सिर्फ 2000 साल पहले ये हमें लॉ नजर आता है, ये शरीयत हमें नजर आती है, बल्कि आज भी खुदा की खात्मा कहती है कि जो यहूदी हैं वो आज भी इस कानून की पासदारी करते हैं और कोई भी ऐसी बहन बेटी जो ऐसे मसले में है वो ऐसी हालत में हैकल में दाखिल नहीं हो सकती। They are still stuck in the very 5 books of Moses. और क्योंकि यहूदी अभी भी मूसा की पहली 5 जो हमारी बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें हैं उसमें फंसे हुए हैं, उन कवानीन में कैद हैं, which are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. और वो है पैदाइश की किताब है, खरूज की किताब है, अहबार की किताब है, गिनती की किताब है और अस्तस्ना की किताब है। And the law of Moses. और इसको हम कहते हैं मूसवी शरीयत। Married couples sleep in separate beds during their wives' menstrual for 2 weeks. और खुदा की खात्मा कहती है अगर वो औरत जो शादीशुदा है और अगर वो ऐसी हालत में है तो वो उस लॉ के मुताबिक अपने शौहर के साथ भी एक कमरे में नहीं रहे।
And I want to share this. I feel the Holy Spirit is telling me to share it. If there's women out there that are trying to conceive babies, और खुदा के खातमा कहती है पाकरू मुझे तहरीक दे रहा है कि मैं आपको बता सकूं कि बहुत सारी बहनें इसलिए भी जो है वो हामला नहीं होती। वो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बच्चों की बरकत उनकी जिंदगी में नहीं आती। 2 weeks after your menstrual, body is reproduction at its peak, at its highest. और खुदा की खातमा कहती है कि जब ये वक्त गुजर जाता है तो वो वक्त आता है कि जब एक औरत जो है वो औलाद पैदा करने के लिए खुदा उसे बरकत देता है। But let's go back to the story. So after 12 long, desperate, long-suffering years, और जब 12 तवील मायूस कुन उसके जो साल उसने इस बीमारी में उस औरत ने गुजारे हैं। tell your neighbor, how desperate are you? How bad are you bleeding? आप अपने साथ बैठी हुई बहन को कह सकते हैं, इर्द गिर्द जो बैठी है, कि आप जितने भी मायूस क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में जितनी भी बेचैनी क्यों ना हो, कहें जरा, कहें आप जितने भी मायूस क्यों ना हो, कहें दूसरे को आप जितने भी बेचैन क्यों ना हो मुख्तलिफ हालात की वजह से। And ladies, we might not be bleeding physically, but maybe emotionally, maybe we're bleeding mentally. और खुदा की खातमा कहती है ये जो औरत जिसके 12 बरस से ये बीमारी थी, आप ये ना समझे कि ये जिस्मानी तौर पर इस बीमारी का शिकार थी, बल्कि ये जज्बाती तौर पर और ज़हनी तौर भी इस बीमारी का शिकार थी। This woman was desperate. She suffered long enough. She suffered from rejection. और आप देख सकते हैं कि ये औरत बेचैन थी और काफी अरसे से ये इस तकलीफ को उठा रही थी और इस वजह से माशरे में इसे रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया। Probably was married at one time and divorced her because of her issue. We don't know this full story. हो सकता है खुदा की खातमा कहती है कि हमें इस औरत की पूरी कहानी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में तो बाइबल ने नहीं बताया। हो सकता है इस बीमारी की वजह से, अगर ये शादीशुदा थी तो इस बीमारी की वजह से हो सकता है इसके शौहर ने इसको तलाक भी दे दी हो। She definitely felt alone, shunned and abandoned. और यकीनी तौर पर ये अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी और ये अपने आप को लावारिस महसूस कर रही थी। By this time, the word was out that the miraculous stuff that Jesus was doing. और फिर वो वक्त आया कि यीशु मसीह के वो मौजज़ात जो उसके दौर में उसके इर्द गिर्द हो रहे थे। And as we know, ladies, this kind of stuff, it spreads like a wildfire, right? If you hear that someone got healed, you already know about it. और जब यीशु किसी को शिफा देता तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बात पूरे शहर में, पूरे गांव में और गिरदोनुमा में फैल जाती थी। इसी तरह जब इस औरत को यीशु मसीह ने शिफा दी तो ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाका में फैल गई। Just a story before this one, Jesus just arrived from crossing over in the boat. और इससे पहले कि ये कहानी शुरू होती, यीशु मसीह अभी अभी कश्ती में से होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे ही थे। And when I was in Israel, I learned that Jesus and his disciples spent so much time in the boat, crossing back and forth, back and forth, back and forth. और खुदा की खातमा कहती जब मैं इस्राएल में थी तो मैंने इस बात को जानना सीखा कि यीशु मसीह जो है उन्होंने अपनी खिदमत जो है
वो बहुत ज्यादा कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में कश्ती में बहुत दफा वो सवार हुए हैं। And one of the times that him and disciples were crossing over, he runs into a synagogue leader named Jairus that stopped him. और अभी जब यीशु मसीह जो एक लंबा सफर करके और जो है वो किनारे पर अपनी कश्ती के जरिए पहुंचे ही हैं, तो एक इबादत खाना के एक रहनुमा जिसका नाम याइर था, उसने उसे रोका। He stopped him because his little girl was close to death. क्योंकि उसकी छोटी बेटी मरने की हालत में थी। He was distraught and he was like, "Come lay hands on my little girl because she is close to death." वो इधर देखें सारे, वो कहने लगा, याइर जो इबादत खाने का सरदार था, वो यीशु मसीह से इल्तिजा करने लगा, ए यीशु तू आ, और अगर तू मेरी बेटी के सर पर हाथ ही रख देगा, अगर तू कह ही देगा, तो मेरी बेटी जो मरने को है वो जीती रहेगी और लंबी उम्र पाएगी। हालेलुया। So as soon as Jesus and disciples get out of the boat, here's Jairus begging, asking Jesus, "I need your help. My little girl is dying, and I need you to lay hands. I need you to lay hands on her because I know if you lay hands on her, she will live." और खुदावंद के भी शागिर्द नहीं आए और अभी यीशु मसीह पहुंचे हैं और यीशु मसीह से वो बार-बार इसी बात का इल्तिजा कर रहा है कि मेरी बेटी मरने को है। वो भीख मांग रहा है और कहता है कि मैंने देखा है ऐ यीशु, अगर तू किसी पर हाथ रख देता है अंधे देखते हैं, अगर तू कह देता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 4 दिन का मुर्दा जो है वो कफन समेत बाहर आ जाता है, अगर तू हाथ ही रख दे तो मेरी बेटी बच जाएगी। So let's go back to the story about the woman. आइए, So the word was out. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो उस औरत की जिंदगी में जारी हुआ। This woman locked up and isolated in her home. और आप सब जानते हैं कि ऐसी हालत में वो औरत क्या थी, अपने घर में बंद थी और अलग-थलग रहती थी। Ladies, I honestly don't think that this was her very first attempt to get close to Jesus. अब खुदा की खात्मा कहती है, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, ये यीशु के करीब जाने की इसकी पहली कोशिश ना होगी। I know that she woke up one day and was like, "I'm going to be brave and I'm going to get out of my house and I need to touch him." But maybe fear came and set in. और हो सकता है खुदा की खात्मा कहती हो, खुदा की खात्मा कहती वो कहती होगी, वो औरत जो 12 बरस से इस बीमारी में मुब्तला है, कि एक दिन वो सुबह सवेरे उठी होगी और वो कहती होगी कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के पास ही जाऊंगी और उसको छू जाऊंगी, जब वो उसके जो है उसके पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो सोचती होगी, एकदम से खौफ उसकी जिंदगी में आ जाता होगा। Because we have to understand, if they was to find out that this woman's coming out of her house, she's in big trouble. They will stone her to death. क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो औरत मरने की हालत में थी और उसने बारहा ये कोशिश की होगी। But I honestly believe that this woman knew him. She probably covered herself. She probably covered herself and disguised herself for no one to recognize who she was. समझ रही होगी। She spent every dollar she had on physicians, hoping she would be told something different. Every doctor, same story. Same doctor, every different doctor, same story. और वो एक ऐसे तबीब की तलाश में थी जो उसे कुछ मुख्तलिफ बता सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सारा माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। But that day,
She woke up different. She was no longer living. Life stopped for her for 12 long years. और एक दिन आया, वो सुबह सवेरे उठी, अब वो जिंदगी नहीं बसर करना चाहती थी जो पिछले 12 बरस से आंसुओं में, बेचैनी में, मायूसी में, दुखों में, लोगों के तानों में गुजार रही थी। She woke up ready to be in front lines of the battlefield. She woke up, something shifted inside of her, crazy probably shifted inside of her. I will leave this house and I will touch him so I can be made well. और उसने इस बात का फैसला किया कि अब मैं छुप छुप कर पीछे पीछे नहीं, बल्कि अब मैं अपने मैदान जंग में जाऊंगी। इब्लीस जो मुझे रोकता है कि मैं अपनी शिफा ना ले लूं, अब मैंने उस सारी रुकावटों को तोड़ते हुए मैंने आगे बढ़ना है ताकि मैं यीशु को छू लूं। She woke up. This is the day. This is the day of my healing. This is the day that breakthrough will come to me. This is the day of my last of the suffering that I will suffer with this issue. और वो कह रही थी कि आज ही वो दिन है, आज का दिन मेरा शिफा का दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है कि मैं आंसू, मायूसी, दुखों में गुजारूंगी, अब मेरी जिंदगी तब्दील होने को है। So the day arrived, and the day arrived, and like I said, I don't think that was her very first attempt, because sometimes it takes a little bit longer for you to receive that courage, to be that brave. और जैसे मैंने पहले बताया, ये पहली दफा नहीं था, बल्कि बार-बार उसने कोशिश की होगी और वो वक्त आ गया कि उसने कहा कि अब मैं उसके लिबास को ही छू लूंगी तो मैं क्या पाऊंगी? शिफा पाऊंगी। But she prepared a plan. और She left her house. और She उसने disguised herself again. और उसने अपने घर को छोड़ा, अपना सर ढांपा, and she sees him by far और and उस calls his name, Jesus, Jesus. और जब उसने यीशु को दूर से देखा, आए मेरे पीछे बोलिएगा, कहे यीशु, ऊंची आवाज में यीशु, यीशु, ऊंची आवाज में मौजे लेने के लिए पुकारे यीशु को, यीशु। Jesus doesn't hear her. और यीशु ने अभी उसकी आवाज को नहीं सुना था। But Jesus doesn't hear her. और Did he? But did he? और लेकिन खुदावंद जानते थे कि कोई है जिसको आज शिफा की जरूरत है। If he did, he probably said something underneath his breath. और अगर यीशु ने उसकी आवाज को सुना होगा तो यीशु जानते होंगे कि आज कोई मुझे पुकार रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारी आवाज को सुनता और उसका जवाब देता है। If you're going to do this, you're going to do it all the way. Keep coming. Keep speaking my name. Stay focused no matter what. और यीशु चाहता है कि अगर आप उसके करीब है, इधर देखिए, इधर प्लीज। यीशु चाहता है कि आप को वाकई अगर शिफा की जरूरत है, आप उसको पुकारते हुए आए, यीशु, यीशु, यीशु। यीशु चाहता है कि उसका नाम बोले ताकि हम उसकी तवज्जो का मरकज बन सके। आमीन। Because faith without works is dead, and we know that. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है बगैर अमाल के ईमान क्या है? मुर्दा है। बगैर ईमान के ईमान क्या है? मुर्दा है। In another translation in the book of the same story in the book of Luke chapter 8 verse 42b, the Bible tells us that the masses were crushing in upon him.
और अगर हम लूका 8 बाब और उसकी 42 रियायत के आखिरी हिस्सा को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके शागिर्द उसको कह रहे थे कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, तो शागिर्द कहते हैं क्या तू नहीं जानता कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। And you know, as the scripture tells us, as he was passing through, और कलाम कहता है क्योंकि वो बहुत तेजी से गुजर रहे थे। and as he was passing through, she came behind him and touched the edge of his cloak, the edge of his clothing. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो पीछे से आई और उसने उसकी पोशाक के किनारे को छू लिया And immediately her bleeding stopped. और हैरान कुन बात यह है कि ना किसी ने उसके लिए दुआ की, ना उसने किसी को दुआ के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पोशाक को छुआ उसका खून बहना बंद हो गया। What are you bleeding from, ladies? What are you desperate to be healed from? What is it? Is it an emotional thing? If it's a physical thing, if it's a spiritual thing, what are you needing healed? What do you need God to heal you from? आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज वुमेन कॉन्फ्रेंस है और ये हीलिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस है और खुदा की खादमा आपसे पूछ रही है कि खुदा की बंदियों, आप जानती हैं कि आपको कौन सी शिफा की जरूरत है। खुदा चाहता है कि आपको माली मुआवजे की जरूरत है, आपको जिस्मानी मुआवजे की जरूरत है, आपको रूहानी मुआवजे की जरूरत है। आप अगर यहाँ पर आए हैं, अगर उसके छूने से उसको शिफा मिल सकती है, आज जब आप यीशु को पुकारेंगे तो यीशु आपको भी शिफा देगा। हालेलुया। I only imagine her pushing through the crowds with courage and tenacity, fierce and courage, and fierce to trust in the Lord to make her well. और खुदा की खादमा कहती है, मैं इस बात को तसव्वुर कर सकती हूँ कि कैसी हिम्मत के साथ उसने उस बड़े हजूम को पीछे धकेला होगा, उस हजूम को चीरती हुई आगे बढ़ती गई ताकि आज वो यीशु से शिफा को ले सके। I picture her being stomped on as she crawled in an army crawl. She was fighting her way through. और खुदा की खादमा कहती है, मुझे तो उसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे कि फौजी दुश्मन से छुपता हुआ और रींगता हुआ, जैसे फौजी रींग के चलते हैं ना अपने बाजुओं के साथ, पूनियों के साथ। तो खुदा की खादमा कहती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो इस पोजीशन में है। She was fighting through the storm, through the trouble. She has nothing to lose but much to gain. और खुदा की खादमा कहती है, अब उसके पास होने के लिए कुछ ना था, लेकिन आज उसके लिए हासिल करने के लिए था। क्या हासिल करना चाहती थी? क्या हासिल करना चाहती थी वो? शिफा। She might as well fight all that she had left to fight. और आज उसने बहुत अच्छी जंग लड़ी जो उसको लड़ने की जरूरत थी। Even though her life was in the line. और क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज मैंने हिम्मत ना की तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। She probably said, "You don't know me. You have not walked 1 mile in my shoes. You don't know how I have suffered, how much pain I have to endure, what I have to be facing every single day to be isolated and rejected." और वो जरूर खुदावंद से दिल ही दिल में ये कहती हूँ कि खुदावंद तू नहीं जानता कि मैं कितने दुख में हूँ, मैं कितने आंसुओं में हूँ, मैं हर रोज अलग थलग दुनिया से रहती हूँ, लोग मेरी तरफ ताने कसते हैं और वो अपने दिल ही दिल में ये बातें कहती होगी। How bad are you bleeding? How bad are you bleeding? We're talking about physical, mentally, emotional, spiritual. और हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ उसकी बदनी बीमारी की बात नहीं है,
वो जिस्मानी बीमारी में नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी और हर तरह से वो बीमारी का शिकार है। Who touched me? यीशु मसीह ने कहा, Someone किसने मुझे touched me. छुआ? I know that because power has gone out of me from me to you. Who touched me? And that's what Jesus was saying. यीशु मसीह कहने लगे, जब उस औरत ने यीशु को छुआ तो क्या कहने लगे कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। Jesus made a powerful statement. It wasn't a question. We have to understand, this was not a question. It was a powerful statement. Who touched me? Who touched me? ये कोई सवाल नहीं है, ये एक जबरदस्त यीशु मसीह का बयान है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। It was a powerful statement because the glory of God surpassed him. The anointing of the power surpassed Jesus into this woman. क्योंकि खुदा का जलाल, इधर देखिए, खुदा का जलाल जब उसने खुदावंद की पोशाक को छुआ, खुदा का जलाल जब जैसे ही उसने छुआ है तो उसके छूने से खुदावंद का जलाल उस औरत में ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो खुदा का जलाल जब उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ तो वो पहले जैसी ना रही। हालेलुया। Through faith, through seeking him, through worship, through praise and power is released from him unto you. और हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत ने, खुदा के शिफा देने वाली कुदरत ने उसे छुआ। She knew him. She had faith to believe that he would heal her. वो जानती थी। इधर देखें, क्या आप जानते हैं यीशु शिफा दे सकता है आपको? बोले इधर थकना नीचे, इधर बस 5 मिनट और। क्या आप जानते हैं यीशु आपको शिफा दे सकता है? बोल नहीं रहे आप। क्या यीशु आपको शिफा दे सकता है? She had the faith to know that he was willing and he was able, because you just don't risk your life for just anybody. You don't risk your life unless you know that you know once I walk out that door, I'm going to be made healed, I'm going to be made well. और वो औरत जानती थी, और आज आपको भी जानने की जरूरत है। इससे पहले कि आप अपने घरों को वापस जाएं अपनी बीमारी के साथ, आज आप खुदावंद से कहें, खुदावंद आज मैं उस बीमारी से, अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, दुख है, मुसीबत है, क्या खुदावंद उस बीमारी को, उस दुख, उस मुसीबत को अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाना चाहती, बल्कि आज तो मुझे उस बीमारी, दुख, मुसीबत से आजाद कर। हालेलुया। Power comes out of Jesus into you, ladies, when you touch him. खुदा की कुदरत आज भी काम करती है और आज भी आपको छू सकती है, क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। आमीन। Jesus will stop in the middle of whatever he is doing just to meet you. और खुदावंद ने सब कुछ जो वो कर रहे थे, हो सकता है किसी के लिए दुआ कर रहे हो, खुदावंद ने सब कुछ छोड़ा और उस औरत की तरफ मुतवज्जा हुए। Just like he did with the woman that was bent over for 18 years, he stopped in the middle of his sermon to greet this woman. और आपको पता है, ये सिर्फ इस औरत तक बात नहीं है कि इस औरत ने शिफा पाई है। इधर देखने, इधर प्लीज, इधर बाइबल में लिखा है, एक औरत जो 18 बरस से कुबड़ी थी, खुदावंद जब हैकल में गए, खुदावंद ने जब उसको देखा तो खुदावंद ने पैगाम सुनाने को रोका और उसकी तरफ बढ़े और उसको क्या कर दिया, शिफा याब कर दिया, उसको शिफा दे दी। वो जो कुबड़ी थी, वो जो सीधा नहीं हो सकती थी, जैसे ही खुदावंद ने उसकी तरफ बढ़े हैं तो वो बीमार न लगी, बल्कि उसने क्या पाली, शिफा पाली। No, he's not too busy for you. He has not forgotten about you.
और इस बात को भी याद रखिए, इधर देखिए बहने प्लीज, खुदा आपके लिए मसरूफ नहीं है, खुदा आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। खुदा कहे खुदा मेरे लिए हर वक्त मौजूद है और हर वक्त मेरा ख्याल करता है। आमीन। What if we fight a little harder? What if we push a little harder? What if we get sick and tired of being sick and tired? और मेरे अजीजों, हमारे और आपके दरमियान एक जो जंग होती है वो है क्या होगा। क्या है जी? बोले क्या होगा? अगर हम थोड़ा सब वेट अ मिनट, अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएं, धकेल लेंगे तो क्या होगा? अगर हम इतने बीमार हैं और अगर हम थक जाएं, कोशिश ना करें तो क्या होगा? हम अक्सर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों की फिक्र में अपनी शिफा को क्या है खो देते हैं। Let's go back quickly on the story of Jairus and the leader of the synagogue. और जल्दी से हम याईर की बेटी की तरफ दोबारा से देखेंगे। Jesus didn't hurry to head with Jairus. Jesus knew exactly what he was doing. यीशु ने याईर के साथ जाने में जल्दी नहीं की। इधर देखें, इधर यीशु ने याईर के साथ जाने में जल्दी नहीं की। यीशु जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यीशु जानते थे याईर की बेटी को तो मैं जिंदा कर दूंगा, इस औरत को अब इस शिफा की क्या है जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी में। The woman with the issue of blood had to be healed first. यीशु जानते थे कि ये औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है, इसको शिफा की ज्यादा जरूरत है। Sometimes we don't understand our waiting, and sometimes we want to be happy for others, but it's hard. Let me give you a peace of mind. कभी-कभी हम अपना इंतजार के उन घड़ियों की समझ नहीं होती। कभी-कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, लेकिन खुदा की कलाम कहती है आज मैं आपको ज़हनी सुकून देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ खुदा के कलाम की वसीला से। Jesus was not ignoring Jairus, who fell at Jesus' feet, begging Jesus to come to his house to lay hands on his daughter so she would live. और क्योंकि याईर जानता था कि अगर यीशु मसीह उसकी बेटी को छू ही लेगा, उस पर हाथ ही रखेगा तो वो जीती रहेगी। Jesus had to heal the woman that had been bleeding for 12 years first, because Jairus' daughter was 12, and by that time he got back to her, she was already dead. क्योंकि इस औरत को शिफा की जरूरत थी और उस वक्त उसके पास मौजूद थी और वो 12 बरस से बीमार थी। और यीशु मसीह के पास जब याईर आया, और अगर यीशु मसीह उसके पास जाते भी तो उनके जाने तक वो बेटी तो पहले ही मर चुकी थी। Why would the issue of blood was healed first? Because she was the donor of the little girl. और क्यों उस औरत ने पहले शिफा पाई? क्योंकि वो औरत जो थी वो उस छोटी बेटी के लिए एक डोनर बनी है। क्या बनी है जी? डोनर से मुराद है कि वो उसके लिए मददगार बनी है कि वो बेटी जीती रहे। What gives us life? What gives us life? कैसे उस लड़की को जिंदगी मिली है? The blood. The blood is what gives us life. क्योंकि जब तक रगों में खून दौड़ता रहेगा इंसान जीता रहता है। और जैसे ही वो यानी कि जैसे ही खुदावंद उस बेटी के पास जाते हैं, उसके बदन में दोबारा से खून की गर्दिश दोबारा से शुरू हो जाती है। Nothing but the blood of Jesus. What is the average a girl receives her menstrual? और Age 12. That is the normal age. और आप सब जानते हैं कि यीशु का खून ही हमें शिफा देता है।
took from this woman what the little girl needed, 12 years of life. What the woman thought was wasted time, God turned it around for the good. और मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि उस औरत ने 12 वर्ष अपने ज़ाया कर दिए, उस बीमारी में, उस दुख में, उस बेचैनी में। Hallelujah. Hallelujah. Jesus always knows who he needs to heal first. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि किस को पहले शिफा की जरूरत है। So that's the reason why Jesus didn't go run to Jairus' home to heal the daughter. He went to heal the woman with the issue of blood first, because he knew that he needed that woman was going to be the donor for this little girl. और खुदावंद ने वो काम किया जो पहले जरूरी था, और उसने पहले उस औरत को शिफा दी, क्योंकि यीशु जानते थे कि मैं उस औरत को शिफा, उसको जिंदा, उस बेटी को जो 12 बरस की है, उसको जिंदा करने की कुदरत रखता हूँ। So when you see someone being blessed or being healed, praise God. Praise him because he's in town. और इस बात को जानिए, इधर अब आखिरी बात है, अब मैसेज खत्म हो चुका है। खुदा की खान पर कहती है, वेट अ मिनट, इस बात को जानिए, अगर आप किसी शख्स को शिफा पाता देखते हैं, उसकी जिंदगी में मौजज़ा देखते हैं, तो आप जरूर कहें खुदावंद तेरी तारीफ हो, क्योंकि वो आपके शहर, आपके इलाका, आपके मोहल्ले में यीशु मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, भी इतना ठंडा, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। So tell your हालेलुया। neighbor. आइए अपने पड़ोसी से कहें, He's in town. कहें, He is right there with you. He is in your village. He is in your home. आइए अपने साथ वाले से कहें, यीशु आपके शहर में है, यीशु आपके इलाका में है, यीशु आपके घर में है, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। God heals someone and not you, because maybe God needed to heal them first, because they might have been a donor for you, for your healing, for your breakthrough. अच्छा, इस बात से भी मायूस ना हुआ करें कि अगर आप भी बीमार और आपका साथ वाले बीमार, अगर वो शिफा पा गए और आप शिफा नहीं पा गए, तो इस बात से मायूस ना हो। अगर खुदावंद ने उसको शिफा दी है, तो समझ ले अगली बारी आपकी है। हालेलुया। कहे अगली बारी मेरी है, कहे अगली बारी मेरी है, मैं शिफा पाऊंगा। बोले ये ईमान है, ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। असि दूजिया गल्ला बहुत बोलते हैं, लेकिन ईमान नहीं बोलते। अभी फरा ने भी, बाजी सारा ने भी, और इसी तरह से बाजी लुबना ने भी ये बात की है, ईमान बोलना है और बोलने से मौत से होंगे। आमीन। Say, I'm next. I'm next. I am next for my breakthrough. I am next for my healing. I am next for God to touch me. I am next. कहे मैं अगला हूँ, यानी कि अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है कि जब खुदा मुझे छुएगा, मुझे शिफा देगा, मेरे लिए आसमान के दरीचे खोलेगा, मेरे लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि मेरी बारी अगली है। मैं हूँ जिसको खुदा शिफा देने को है। आमीन। Thank you, Jesus. आए कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो। दोनों हाथ उठा करके खुदावंद, माना नहीं कहे, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मेरे घर में आया है, तू मेरी जिंदगी में आया है, तू मुझे छू रहा है, तू मुझे बहाल कर रहा है। मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मैं बरकतों से माला माल होगा। आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। How desperate are you? How desperate are you? खुदा की खातमा कहती है, मैं देख रही हूँ आप कितने खुदावंद की बरकत को लेने के लिए मुंतज़िर हैं।